Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss NCLT. NCLT full form is National Company Law Tribunal. This has consolidated jurisdiction of Company Law Board, BIFR, AIFR. Now, when it is deducted during corporate insolvency resolution process or a liquidation process, that the business of corporation, corporate debtor with intent to defraud has done certain acts, it may order an interim resolution. So IRP may be appointed. IRP is a person who will collect information about assets, loans, transactions, operational position, etc. Second, previous 2-year business operational, 2-year payments, it will collect the information about this. It will create list of assets and liabilities. It will ask all the creditors to submit their claims and constitute a committee of creditors. Collate the information, means it will add the information, will take custody of all the assets, and it will carry out all the duties assigned by NCLT. So in NCLT cases, the main role is carried out by interim resolution professional, and its appointment is done by NCLT. Now, what is the advantage to the banks? Banks or the financial institutions, they finance to various companies, and sometimes the normal civil suit procedure is very lengthy and tardy to recover the dues. NCLT provides a resolution which is less time consuming. Although the expectation from NCLT has not come up to that level, which was the initial hype that banks will be able to realize the funds very rapidly. But over the period of time, it is felt still number of cases are resolved. Number of cases banks are able to recover the amount, and in some cases the recovery is very close to the outstanding also. But in some cases banks have to take a very high haircut. What is haircut? Haircut means the sacrifice that is done by the bank. In simple words, we can understand, if we have to recover say 1,000 crore from a customer, and NCLT decision we are getting 400 crores, that means 600 crore is our loss of banks. This is called haircut. So haircut is the loss that is incurred on the banks. So lesser is the amount recovered, higher is the haircut. So on this channel we are having lot of videos on banking and finance. Watch 10 to 15 videos per day. You will be highly knowledgeable. For current affairs, I have suggested you a very good source. Link is available in description. Click the link, you will land up on the app. Download the app and take current year plan, apply coupon code AA03, you will get 10% discount. You will have lot of current affairs and study that. For maintenance of good health, I have given you a playlist. Watch these videos and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCLT. NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ये संस्था बनाई गई जिसके अंदर कंसोलिडेट कर दिया गया है जुरिस्डिक्शन जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड के पास था, बाइफर के पास था या AIFR के पास था. अब इसका रोल क्या है कि जब भी ये डिडक्ट करते हैं ड्यूरिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस, दैट कि इस बिजनेस ने, जो कि एक कॉर्पोरेट डेटर है, उसने डिफ़ॉल्ट करने के इंटेंट से कुछ कार्य किए हैं तो वो एक ऑर्डर कर सकती है. उस ऑर्डर के अंतर्गत इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है. जो इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल, जिसको IRP बोलते हैं,
वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस कंपनी की जितनी एसेट्स हैं, जितनी लोन ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी ऑपरेशनल पोजीशन है। दूसरा काम वो ये करता है कि पिछले 2 सालों के बिजनेस ऑपरेशंस को कलेक्ट करता है और 2 साल में जो भी पेमेंट्स हुई है उनको भी स्क्रूटनाइज करता है। फिर वो लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बनाता है। इसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको वो अपना क्लेम सबमिट करने के लिए कहता है। उससे टोटल क्लेम्स पता लगते हैं। उसके बाद एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है क्रेडिटर्स की, जिसके अंदर क्रेडिटर्स मिल के फैसले लेते हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोलेक्ट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर वो जितने भी एसेट्स हैं उस कंपनी के, उनके ऊपर अपनी कस्टडी ले लेता है और जो भी उसको ड्यूटीज़ एनसीएलटी के द्वारा असाइंड है उनको वो करता है। तो एनसीएलटी के आने के बाद बैंकों को फ़ायदा क्या हुआ कि जो प्रोसेस है रिकवरी का वो फास्टर हो गया। क्योंकि पहले जो बैंकों के पास प्रोसीजर था वो क्या था, सिविल सूट फाइल करना। सिविल सूट के अंदर बहुत अधिक टाइम लगता था, तो कई बार रिकवरीज कई साल तक नहीं हो पाती थी। एनसीएलटी आने से ये हुआ कि ये रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। शुरू में तो ये माना गया कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस हुआ कि उतना जल्दी तो नहीं हो रहा, बट फिर भी कुछ केसेस रिजॉल्व हो गए और जो केसेस रिजॉल्व हो गए उसमें बैंकों की रिकवरी हुई। मगर रिकवरी के साथ साथ एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है हेयर कट। हेयर कट का अर्थ ये है कि जब हमारी जो आउटस्टैंडिंग है और जो हमें पैसे रिकवर हो रहे हैं उसके बीच का जो गैप है वो बैंक को टोटल लॉस है और उसको हेयर कट कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर हमें समझना तो ये है कि हमें एक अकाउंट में लोन में 1000 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं, मगर एनसीएलटी के रेजुलेशन के बाद हमें 400 करोड़ रुपए मिले उसके अंदर, तो 600 करोड़ हमारा हेयर कट हो गया। अगर 1000 करोड़ हमारी आउटस्टैंडिंग है, 1000 करोड़ ही हमें मिल गया तो हेयर कट 0 हो गया। तो केस टू केस ये डिपेंड करेगा कि बैंक को कितना हेयर कट लेना पड़ा, बट वो वन टाइम लॉस है। उसके बाद आपका एसेट दोबारा परफॉर्मिंग बन गया, दूसरे पार्टी ने उसको ले लिया और बैंक की भी बैलेंस शीट क्लीन हो गई। अब बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स पे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 10 से 15 वीडियोस रोज़ देखिए, इससे आपको मदद मिलेगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको अच्छा सोर्स बताया, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इसको क्लिक करिए, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद करंट ईयर का प्लान ले लीजिए, कूपन कोड AA03 इस्तेमाल कर लीजिए, 10% आपको ऑफ मिल गया। अच्छी सेहत कैसे मेंटेन करें इसके भी मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको दी है। इन वीडियोस को देखिए और हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू।